Hello all of you. Welcome to Academic Maths with Shelly, and today we will learn more on the set. Today our topic is subset, power set and universal set. In previous two video I have already cleared the notion of sets, the notion of type of sets and what is the representation of sets. So if you want to watch those videos, please go through the link is in your description box. So let's start today's topic. So our first topic is subsets. So first of all we start the definition of the subset, that is a set A is said to be subset of set B if all the elements of the set A are also present in set B. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, सेट को हमने ए नाम दे दिया है, तो अगर हम कोई दूसरा सेट मैनेज करते हैं जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट हों और उसके सारे एलिमेंट सेट ए में हो, तो जो सेट बी हमने लिया हुआ है, दैट सेट विल बी द सबसेट ऑफ सेट ए. फॉर एग्जाम्पल see the example here. Set, if I have set of starting 5 natural numbers, that is 1 2 3 4 5, right? Now I am going to make a subset of this set, which is written here. This is 1 2 and 3. So here we are watching that. Let us consider I am giving the name of this set B and name of this set is A, right? So all the elements of B, 1 2 3, all the elements of B already contained in the set A. All the elements of B contained in set A, and set B is completely contained in A, so we can say that B is subset of A. So I hope the notion of subset is clear to you. Now again I am going to the symbol of subset. What is the symbol of subset? So symbol of subset is, a subset is denoted by the symbol like U, and read is a subset of, right? So for example, I am giving you the example of set A and set B by the name. So here B is subset of A, so we can write it like B is subset of A. So I hope the notion of subset is clear to you now. Let us move further. Now we will come on some notation. The notation is A is subset of B. If A belongs to A, it implies that A belongs to B. Means अगर A B का सबसेट है तो इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन करेंगे, B में बिलोंग्स करेंगे. इसका मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट A है और वो A में ही बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट B में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज A जो है वो B का ही सबसेट है. सो राइट. सो आई होप दिस नोशन इज again clear to you. What is the meaning of subset, what is the sign of subset, and this sign is stand for it implies that. This sign is stands for it implies that. Okay, so now we will start some properties of the subset. First property, if a subset of B, if a subset of B, if A is subset of B, that is A is subset of B, this is a symbolic form. Again, if B is subset of A, B is subset of A, this is symbolic form, then A is equal to B. Then we say that sets are equal. Means अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो सेट लिए हुए हैं और उसमें क्या हो रहा है कि A जो है वो B का सबसेट है एंड B इज सबसेट ऑफ A. सो इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं और रिवर्स में क्या हो रहा है कि B के भी सारे एलिमेंट्स A में बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स कि A और B के दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है. सो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे. A इज इक्वल टू B, राइट. सो यही एक प्रॉपर्टी है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन बोथ सेट्स आर इक्वल. मीन्स सेट A एंड सेट B बोथ आर इक्वल, एंड दिस इज द लैंग्वेज फॉर्म ऑफ इट. If A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B. Again we come on the property number 2. Property number 2 is saying that any set is subset of itself. Any set is subset of itself. So let us consider an example of set. For example, I have a set A which have element 1 2 and 3.
अगेन आई एम वॉचिंग दैट कि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद सेट ए में तो बिलोंग करेंगे ही, सो इसके हिसाब से ए जो है वो खुद का भी सबसेट हो जाएगा, राइट। सो ए इज सबसेट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज दैट कि कोई भी सबसेट है तो कोई भी सेट लेते हैं तो वो खुद का ही सबसेट होता है हमेशा, ठीक है। सो नाउ वी कम ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेइंग टू अस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मीन्स कि जो एम्प्टी सेट है, वी रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट बाय 5। सो जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो किसी भी सेट के दो सबसेट क्लियर हैं, देयर आर क्लियरली टू सबसेट ऑफ एनी सेट। फर्स्ट सबसेट इज एम्प्टी सेट दैट इज 5 एंड सेकेंड सबसेट इज दैट सेट इटसेल्फ, यानी कि किसी भी सेट के दो सबसेट हमेशा पॉसिबल होंगे। पहला सबसेट जो होगा वो 5 होगा, यानी कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट होगा, और दूसरा सबसेट वो खुद ही सेट होगा अपने लिए। नाउ वी कम ऑन द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सबसेट। सो सम एग्जाम्पल ऑफ सबसेट is first is set of rational numbers. Set of rational number is subset of real numbers, right? So as we know very well that set of rational number is represented by q, and in set of rational number all the numbers are in the form of p by q, right? Where q does not is equal to 0, जहाँ पर q जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, right? And p and q both are belongs to r, right? P and Q belongs to R. P and Q belongs to R. R is set of real numbers, right? So यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि R जो सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो सेट होता है, वो हमारे पास जितने भी नंबर्स अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड हुए हैं उन सभी नंबर का कलेक्शन होता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, यानी कि P by Q टाइप के जो सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के सेट के अंदर कंटेन रहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है दैट Q इज सबसेट ऑफ R, मीन्स दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म, Q इज सबसेट ऑफ R. So I hope this property is clear to you. The example of subset, Q is subset of real numbers, right? Rational number is subset of real numbers. So I hope it is clear to you. Let's move on further study. Again, I have a notion of superset. Now it is a notion of superset. I am making the heading here. This is a notion of superset. Now we will going to talk about the superset. So in definition of superset is if A is subset of B and A does not equal to B, then B is superset of A, right? For example, I am giving you one example. Like if I have a set A, if I have a numbers A, B, C, D, right? And if I am going to make a subset of A, that is B, and we will take all the elements from the set A, right? A and B, I am going to take two elements of set A. So here B is subset of A, right? क्योंकि B A में कंटेन कर रहा है, मीन्स B के सारे एलिमेंट A में कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि B जो है वो A का सबसेट है। और यहाँ से यही चीज़ इम्प्लाई हो रही है कि A इज सुपर सेट ऑफ B, A इज सुपर सेट ऑफ B। तो यहाँ से सुपर सेट का नोशन भी क्लियर हो रहा है। नाउ अगेन वी मूव फर्दर। अगेन द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। नाउ इट इज अ नोशन ऑफ सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या होता है कि द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, मीन्स अगर कोई भी सेट है उसमें केवल एक एलिमेंट है तो वो क्या होगा, सेट सिंगल्टन सेट उसको बोला जाएगा, क्योंकि उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। सो सिंगल्टन सेट का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट दैट इज 4, सो दिस सेट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल। लेट अस कंसिडर वी हैव द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, set of even prime numbers. So what is this? 2 is only even prime number, so this set is contain only single element, right? This set is contain only single element, so that I can say that this is the singleton set because it has only one element, that is 2, right? So now we will move further. Some subsets of real number. We will talk about some subsets of real number. So first example is n set of natural number is subset of Z, Q and R. We well known that Z is what? Z is set of
integers, that Z is stand for integers, Q stands for rational, as we talked about this earlier, this is for rational, and R is again for real number, right? So what is the n? In n all the numbers come 1 2 3 4 up to so on, up to infinity, right? सो नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या होता है कि सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स इंटीजर्स में भी होते हैं, रियल रैशनल नंबर्स में भी होते हैं, और रियल नंबर्स में भी होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि n जो है वो सबसेट है, z का भी है, q का भी है, और r का भी सबसेट है। तो इट कैन बी रिटन एज n इज सबसेट ऑफ z, n इज सबसेट ऑफ q, एंड n इज सबसेट ऑफ r, right? Again we come on second example, that is set of integers is subset of z, q and r, right? set of integers क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड 0। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या कंटेन होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0। सेट ऑफ z कैन बी रिटन एज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि z के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद तो z में बिलोंग करेंगे ही, ठीक है। z और z के जितने एलिमेंट हैं वो p बाई q के फॉर्म में भी आ सकते हैं, दैट इज दिस इज अ सबसेट ऑफ q ऑल्सो, एंड z के सारे एलिमेंट r में भी बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि z जो है वो खुद का भी सबसेट है, z q का भी सबसेट है, z इज सबसेट ऑफ q, and again z is subset of r also. So from here it is well known z is subset of integers, z set of integer is subset of q, z and r, right? So I hope this notion is clear to you now. Again we will start the study further, we will move on next example, that is q. The set of rational number is subset of q and r. z is written by mistake, don't consider z here. so q जो है वो अपना खुद का सबसेट भी होगा और रियल नंबर का सबसेट भी होगा, ये हमने अभी प्रीवियसली एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया हुआ था। अब आते हैं t पे। t जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देर आर सम इर्रेशनल नंबर, दैट इज √2 पाई, राइट। तो ऑल दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, वैल्यू ऑफ e, so all these numbers are irrational because they cannot be written as a form of p by q. बट वॉट आई एम सेइंग टू यू कि रियल नंबर के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं सारे के सारे नंबर कंटेन रहते हैं। सो इस वजह से क्या होगा कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर के अंदर ही कंटेन करेंगे। इसका मतलब कि रियल नंबर जो है वो सुपर सेट है इरेशनल नंबर का, या फिर इरेशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में, दैट t इज सबसेट ऑफ r, यानी कि रियल नंबर्स, राइट। अगेन वी मूव ऑन द थर्ड एग्जांपल, दैट इज ऑल इंटरवल्स इन रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक रियल लाइन बनाई, वी ऑल नो अबाउट द रियल लाइन, ठीक है। सो अब इस रियल लाइन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ कहीं 0 होता है, यहाँ कहीं 1 होता है, 2 होता है, 3 up to so on, इधर -1 -2. So all these are intervals, these are small intervals which contain rational as well as irrational. Any interval we can take is smaller, larger, no problem, any interval we can take. So all these numbers are come in the set of real numbers, so that intervals represented by I, so I is subset of R, right. Again we will move on for further study. So our second topic is power set. Power set is important topic and a good topic for study. So come on the definition of power set, that is let A is set, right. A हमने कोई भी set ले लिया, ठीक है। So then collection of
all the subsets of A is called power set of A. मीन्स कि हमने A सेट लिया और हम उस सेट के सारे सबसेट का जो कलेक्शन करेंगे उन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर रखेंगे और वो सेट जो होगा, जो नया सेट बनेगा सारे सबसेट को रखने के बाद, वो सेट होगा पावर सेट. दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट एंड पावर सेट इज डिनोटेड बाय PA. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है A इज इक्वल टू 1 2. ओके, और लेट अस कंसिडर वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स इन A. अब हम क्या करेंगे, इसके सबसेट्स बनाएंगे. सो हमने अभी इससे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था कि फाई जो कि नल सेट है और खुद A, ये दोनों ही सेट खुद के सबसेट होंगे, राइट. अब हम क्या करेंगे, इसके और सबसेट बनाएंगे. तो इसका एक और सबसेट हो जाएगा जिसमें हम केवल एक एलिमेंट ले लेंगे 1. अगेन वी कैन मेक अनदर सबसेट इन विच ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर 2. सो आई एम वॉचिंग दैट in our power set of A there are 4 element, that is phi A 1 2, right. So हमने देखा कि हमारा पावर सेट में क्या हो रहा है, पावर सेट में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं. आई एम मार्किंग इट, ठीक है. तो हमारे पास पावर सेट में क्या हो रहा है कि 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं. 4 एलिमेंट्स आर देयर इन अवर पावर सेट. यू कैन सी द पावर सेट, राइट. सो अब हम क्या करेंगे कि वी विल मूव फर्दर. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. लेट वी हैव अ सेट X, राइट. We have a set X in which we have only 4 elements, that is A, B, C and D. Again we come on the power set. अब हम इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे. यहाँ पर पावर सेट में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X. तो यहाँ पर क्या होगा, PX को से रिप्रेजेंट होगा और X के सारे सबसेट जो हैं इस पावर सेट के अंदर पुट किए जाएंगे. दिस इज द नल सेट, स्टैंड्स फॉर फाई. दिस इज A, सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C, डबल AB, BC, CD and ABC. This is complete set A. Sorry, this is complete set X. This is your complete set X, right. So अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो X का पावर सेट है वो क्या क्या आ गया, उसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 elements in power set which have, this is power set of X. क्योंकि X के एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट थे 4 और पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8, राइट. सो अगेन we will move further some properties and some cardinality of power set. अब हम आते हैं पावर सेट के नोटेशन पे और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस पर, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट के वो लिखे जाते हैं मॉड के अंदर, लाइक दिस, ठीक है. दिस रिप्रेजेंट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ठीक है, इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, ठीक है. तो ये जो साइन है इस कार्डिनैलिटी के लिए स्टैंड होता है. अब क्या है कि हम लोग PA की कार्डिनैलिटी के बारे में जानते हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर कोई सेट है उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ A लेंगे, उसकी कार्डिनैलिटी क्या है 2 की पावर n, ठीक है. तो अब 2 की पावर n कार्डिनैलिटी है और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है, ठीक है. सो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A जो है सेट, उसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट A B C D, ठीक है. इफ़ वी हैव 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ A हमारी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है. सो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A की जब बात करेंगे तो दैट विल बिकम 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A, दैट इज 2 की पावर 4, right. We will solve it and we will get the cardinality of power set of A which have 4 element in A, right. Okay, so again we will go on. The last topic is universal set. So universal set को हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है. तो लेट अस से देयर आर 3 सेट, ठीक है. हमने कोई 3 सेट ले लिए जिनका नाम है A, B and C, ठीक है. तो वी हैव 3 सेट. फर्स्ट सेट इज A 1 3 6 and 8, right. Second set is B 2 3 4 and 5. थर्ड सेट इज C 5 8 9, ठीक है. तो हमने देखा कि A में हमारे पास 1 3 6 और 8 है, B में 2 3 4 और 5 है और C में
5, 8 और 9 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड सी। अब हमें ए बी और सी तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए द यूनिवर्सल सेट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमें ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ए बी और सी के कंबाइंड यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ए और बी सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम यू के अंदर रख देंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। सो जितने भी एलिमेंट यू में हैं वो सारे के सारे ए बी और सी में हैं, ठीक है। तो यू जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए बी एंड सी का, ओके। सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टॉप आवर वीडियो एंड आई होप दिस सेशन विल बी informative to you. Keep watching the channel. Everything will be provided you related to CBSE NCERT class 11th. Thank you.